शायद ये रफाल है। पश्चात भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं हमारे मुख्य अतिथि यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 76वां गणतंत्र दिवस देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक पड़ाव, जब हमारा देश एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ रहा है। हम आभारी हैं इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्राबोवो सुबियांतो के, जिन्होंने Coming in now is the Rafale aircraft pulling up at the speed of 900 km/h. Ladies and gentlemen, Vijay Foundation. अपनी हवाई दक्षता को परिभाषित करते हुए ऊंचाइयों के नए आयाम बनाती भारतीय वायुसेना यह सिद्ध करती हुई कि विजय ही वीरता का प्रमाण है। और जैसे ही अंतिम विमान की गूंज आकाश की विशालता में होती है, हम इस गौरवशाली गणतंत्र दिवस को गर्व और प्रशंसा के भाव के साथ समाप्त करते हैं। आज जो हमने देखा, Ladies and gentlemen, keep your eyes on the aircraft as they pull up outwards as they reach the saluting jet for the Trishul maneuver. त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवी और सजनों विजय नाम करता। Ladies and gentlemen, the Vajrang formation. On saluting days now, the Amrit formation. एक और Commandant Narendran and Commandant Sunil Negi, and flanked by DIG Siddharth Bhandari, Commandant Ranveer and Commandant Prateek Bardhan on the right, and Commandant Jayant Thorat on the left. Ladies and gentlemen, the Rakshak formation. Pratihanti translating strike to kill. Along with it, we can see two C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being flown by Wing Commander Saurav Singh to the right and Wing Commander P. Reddy to the left. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, the Arjun formation. और कर्तव्य पथ पर अगली फॉर्मेट 200 स्क्वाड्रन के स्नेह की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन प्रभाकरण ने। स्क्वाड्रन का ध्येय वाक्य उत्तिष्ठ जय शत्रुन, और साथ में 31 स्क्वाड्रन लाइंस के सुखोई शत्रुन छिद्रे प्रहरे के आदर्श वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार यादव और विंग कमांडर परमिंदर सिंह चहल ने। फॉर्मेशन एकता, सटीकता और स्वदेशी रूप से विकसित हमारे विमानन प्रौद्योगिकी की अद्भुत क्षमताओं का प्रतीक, प्रभुता सिद्ध करता C-17 ग्लोब मास्टर। और नभ को गुंजायमान करते सुखोई 30 MPI स्क्वाड्रन का ध्येय वाक्य नाविजित निवर्तनम। In skies above, they take their flight through the veils of blue and clouds of white, with the unique distinction of being the only aircraft in the Indian Air Force with the role of calibration of the Air Force airfields. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, the Satluj formation. Ladies and
gentlemen, behold, debuting on the Kartavya Path for their maiden formation flypast is Raksha, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True of the 48th Squadron, known as Camels, flown by Wing Commander Pinnock. The L-32 is flanked by two Dorniers, flown by Wing Commander Sky. Their bravery and valor forever up and high. Let us all salute these fearless men and women for their service and dedication to our beloved nation. श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया वायुसेना का आदर्श वाक्य नमस्पृशम दीप्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत के महायुद्ध के दौरान दिए गए उपदेश का एक अंश है। अपने पंखों को चौड़ा करके अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक बढ़ते और आकाश की सीमाओं को फिर से परिभाषित करते हुए भारतीय वायुसेना गर्व के साथ आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। To herald the beginning of the fascinating flight past, we will soon witness the Ajay formation, a powerful display of the indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and neutrality across the world. Shortly, you will see 3 Apache helicopters flying from your left on the saluting day in wing formation. The Apaches from 137, known as the Vulcans, are being led by Group Captain Praveen Sarthi. Flying in Ajay 213, we have Wing Commander Munir Joga and Wing Commander Gaurav Patania. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards your left. We now have, approaching the saluting day, the Ajay formation. ये गलत ले दे रहे हैं। These fierce attack helicopters are the face of modern machines and India's leap into manufacturing advanced. कोई विपदा ये सेवा में सदा तत्पर इंतजार बस आह्वान का। और अगली फॉर्मेशन श्रद्धांजलि। इस फॉर्मेशन के माध्यम से कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल्स अपने साथियों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। और ये देखिए मर्करी के परिवर्तन हम और अब आपके सामने शत्रुजीत फॉर्मेशन को दर्शाते हुए 4 डेयर डेविल्स बताते हुए अब कोटि बाधाओं को गर्व के भारत माँ की रक्षा में सक्षम हूँ। और अब 3 पीक डेविल फॉर्मेशन ये देखिए टैंक टॉप फॉर्मेशन में हवादार चौपाड़े दागा सो हो चाहे दुश्मन का अवरोध हम शौर्य समक्ष नहीं टिक पाता दुश्मन का। इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने लॉन्गेस्ट असिस्टेड हेड पथ पर बड़ी शान से अपनी जीत का जोश मनाते हैं। रुकूंगी नहीं, हुंकार करूंगी सपनों को। काफी हूँ मैं अकेला इस जमाने के लिए काफी हूँ। हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले मैं तेरे नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी। और आपके सामने बुलेट सैल्यूट के पोजीशन में नायक विशाल गजाने
सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम। क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दांव में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से। करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जय की जय जय। भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम। देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे मातृभूमे। जयति जय मम भारतम गीत की रचना श्री सुभाष सहगल ने की है। संगीत प्रख्यात संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने दिया है और पार्श्व स्वर श्री हरीश भिमानी का है। नृत्य रचना की संकल्पना एवं निर्देशन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा ने की है और सहायक निर्देशक हैं श्री सुभाष नकाशे, श्री अंकुर पठान, श्री कल्पेश दलाल, श्री संजय शर्मा और श्री रंजीत गोगोई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा इस नृत्य प्रस्तुति के लिए विशेष पोशाक और प्रॉप्स डिजाइन किए हैं। बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का सशक्त मार्चिंग दस्ता। कमान सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश, महाराष्ट्र निदेशालय के सशक्त हाथों। इसमें 48 युवा स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग दस्ते में नेशनल कैडेट कोर के सभी 17 निदेशालयों के युवा कैडेट
का मार्चिंग दस्ता 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ते ने 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया। आदर्श वाक्य शान और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया साफा, करवी, अचकन, गोटा, मोहनी, समरस, झालर, सीखने वाला गोरबन, पीतल की नेवली, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इतला कर चलते और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों कदम से कदम दिल से दिल मिला रहे हैं। वतन में नया चमन खिला रहे हैं। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का तेज है, हमारी भाषा वतन की बात है। बच के ना जा सकेंगे Commissioner Anand, the RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in security. लाइबेरिया का आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next, we have on the service party right in front of the मार्चिंग दस्ता पीस कीपर्स ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम संभाल रही है। इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी क्रोए, सब इंस्पेक्टर दीपिका। चेहरे पर देशभक्ति की भावना, कंधे पर देश की जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व लिए भारत विश्व थोड़ा सा ही हुआ है, थोड़ा सा हो पाया। परेड में प्रदर्शित अगली हथियार प्रणाली प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे आरसीआई डीआरडीओ द्वारा अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस प्रलय हथियार प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन एससीजी, उप परियोजना निदेशक भारतीय तट रक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नविता ठकुरान और तट रक्षक बल के 3 अधिकारी, डिप्टी कमांडेंट सुमित कुमार एवं डिप्टी कमांडेंट पंकज सैनी और सहायक कमांडेंट प्रिया। इनका साथ यह शांति भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्ता और The next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Harshul Gupta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancement in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower. महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में की गई है। रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र सहित कई अन्य वीरता पुरस्कार। दुर्गा माता की जय। Stepping forward, complex synchronization with the center, we have 9 military band of center, artillery sector, and 3 electronics and mechanical engineers sector. Perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Kudache. Garhwal Rifles is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of Garhwal region, namely Pauri, Chamoli, Rudraprayag, Tehri, Uttarkashi, Haridwar and
and Dehradun. The regiment took active part in all the operations in different theatres during what the world was, and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. The regiment has been awarded with 33 battle honours, 1 Ashok Chakra, and 4 Mahavir Chakras, motto, Yuddha, Nishchay, Rockman, Bhagavad Laj, Jai. The regiment has rendered loyal and sterling service to the nation ever since its inception. आगे बढ़ रहा है। इस दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन बिशन बहादुर लद्दाख साउथ रेजिमेंटल सेंटर कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. Formed on 1st October 19... Bharat Electronics Limited, Cutting Edge Analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta, and BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battalion. और अब कर्तव्य पथ पर स्वदेशी रूप से विकसित 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जिसका नेतृत्व 234 आर्मर इंजीनियरिंग रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और कैप्टन जगदीप सिंह कर रहे हैं। ये उन्नत ब्रिजिंग सिस्टम तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नहरों जैसी भूगोलिक बाधाओं को तुरंत पार करने में सक्षम। आदर्श वाक्य नौ आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। Next we witness the impressive Akash weapon system. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्ष के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट की इस दस्ते की कमान संभाली है कैप्टन अजय सिंह गरसाग ने। अपने पूर्ववर्ती काल में इन्होंने प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्धों में अपनी शूरवीरता का परचम दिखाकर फ्रांस, मेसोपोटामिया, बर्मा और उत्तरी अफ्रीका के युद्धों में The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatrunjayi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. देवी और सज्जनों, मैकेनाइज्ड दस्तों के सशक्त मौजूदगी के बाद अब बारी है हमारे शूरवीरों की और मंच की तरफ बढ़ता पहला दस्ता स्वर्णिम आभा लाल रंग की वर्दी में सुशोभित कैप्टन भरत रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का। इस रेजिमेंट को भारतीय सेना की पहली अखिल भारतीय ऑल जास रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। रेजिमेंट पहले 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बटालियनों में भी अग्रणी रही है। 7 युद्ध सम्मान, 10 थिएटर सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 17 परम विशिष्ट सेवा पदकों के साथ कई और सम्मानों से सुसज्जित अति आधुनिक समर्पण को दर्शाता ब्रह्मोस। Approaching the saluting desk now is the equipment of DGIS, the Battlefield Surveillance System, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the joint efforts of the Indian Army and Bharat Electronics Limited, Cutting Edge Analytics make the new BSS a force multiplier ready to be exploited. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta, Reaction Force Vehicle Heavy, also called Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Singh. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying science and defense manufacturing and its technological advancement in global peacekeeping. देवी सज्जनों, मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में आगे बढ़ता दस्ता कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस की विशेष टुकड़ी सुपरसोनिक उच्च सटीक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके को नेस्तुर नाबूद कर सकती है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव, दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाने में पूरी तरह से सक्षम, उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता।
भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। नाविक के ठीक बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल TMP-2 है, जिसे सारंग नाम दिया गया है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर TMP-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 30वीं बटालियन का प्रतिनिधित्व। Detachment of the infantry column, showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the UN peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihab, and specialist mobility vehicle Kapitwaj, led by Nath Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit. इस्लामी मंच के सामने से गुजरती हुई टुमारोज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नाविक चालक दल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। And on the right side is Wing Commander Winner. Ladies and gentlemen, the Dwaj formation. लेफ्टिनेंट जनरल रजनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय दिल्ली एरिया। लेफ्टिनेंट जनरल रजनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी पीढ़ी के अधिकारी 16 दिसंबर। As their harmonious performance fills the air, it reflects the unity and diversity of our nation, setting the tone for today's grand celebrations. Join us as we create harmony and celebrate diversity. विशाल वक्त से शोभित करुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को लेकर चुनौती अपना पर किया अदा। और ये देखिए मेरी और सजनों, सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार केंद्र इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इधर आ जाइएगा, अभी सेल्फी ले लूँगा मैं। माननीय राष्ट्रपति के समारंभ सलामी मंच समस्त
पहुंचते हुए और अब ऐतिहासिक पद्धति में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए उनके साथ इंडोनेशिया के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रबावो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऊंची उड़ानें भरती जा रही है। आइए हम राष्ट्र के प्रति अद्वितीय सेवा के लिए भारतीय वायुसेना के पुरुष और महिला सैनिकों का अभिनंदन करें। आइए बात करते हैं रक्षा उत्पादन विभाग के बारे में। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा निरंतर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित हो जाए। और अब माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए